Introduction to MS Excel. The first topic in this chapter is MS Excel. The describe is you the what is MS Excel and how powerful and which type software it is. Like MS Excel is a powerful spreadsheet program that allow you to organize data, complete calculation, represent data in graphs and develop. Like this is a spreadsheet program. Okay, this is the type of the spreadsheet program. Like many spreadsheet program are available in the market, like LibreOffice, OpenOffice, and this is the another type of a spreadsheet program that is called MS Excel. MS means Microsoft, and Excel is the name of this program in which you can organize your data. Like you can create your data, you create your data in a tabular form, like in the rows and columns. We have a rows and columns in MS Excel, and we can do the complete calculations. Like we can insert a formula in it, we can use a graph and develop report in it. Okay, Excel allow you to organize data in rows and columns, that we can insert a rows and columns in it. These rows and columns are collectively called worksheets. Okay, the one sheet, by default the Excel have a three sheets. Like if I show you the Excel software, अगर आप Excel software को देखोगे, in which you can see only one sheet are available, but in your book MS Excel 2010, there by default three sheets are available. Okay, and the one sheet is individually called a worksheet, and in one worksheet we have 16,384 columns and 1 lakh 10 lakh 48,576 rows, and a spreadsheet file. And that mean, like if I work something in it, like अगर इसमें कुछ table create करता हूँ, and after that I save this file in my laptop or in my desktop, that file is called a spreadsheet file or Excel file, and workbook also, हम उसको workbook भी बोलेंगे. Okay, and this is a workbook. This is a basic difference of workbook and worksheet. Worksheet is a one sheet that this is, and workbook basically is a it's a whole file. Okay, in which we can insert 255 worksheet, maximum 255 worksheet we can insert in it. Okay, and the intersection of rows and columns is called cell. We have a many cells available in the every sheet, and the sheet see in the sheet you can see that these are the intersection of rows and columns. Like if I click on that cell, this is a column. Okay, and this is a row that highlighted also. तो दिस इज इंटरसेक्शन, कॉलम और रोज का इंटरसेक्शन होता है, आपको क्लियरली यहाँ पर दिख भी रहा है. And you can see the intersection if you click on that this cell or this cell. Okay, you can see that the cell border is darkened to comparison the other cell. जिस भी सेल पे आप क्लिक करते हो उसका जो बॉर्डर है वो कंपैरिजन टू अदर सेल थोड़ा डार्क हो जाता है. एंड उसका एड्रेस आपको ये साइड में यहाँ पर नेम बॉक्स में मिलता है, इसको बोलते हैं हम नेम बॉक्स. यहाँ पर आपको इसका एड्रेस मिलता है, ये बोलता है, इसे बोलते हैं हम सेल रेफरेंस और सेल एड्रेस. ओके, एंड इसमें भी यही चीज इन्होंने बताई हुई है कि व्हाट इज सेल एड्रेस एंड व्हाट इज सेल रेफरेंस. सेल एड्रेस एंड सेल रेफरेंस बेसिकली इज द सेम थिंग, एंड इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम हेडिंग एंड रो हेडिंग. इन द एक्सेल the column heading is in alphabets like ABCD, and row heading is in numbers like 1 2 3 4 5 6 and so on. Okay, and the next topic is starting MS Excel. How to open MS Excel? Like we have a many options to opening the MS Excel, but these are some options according to Windows 7. Okay, we simply click the start button. The start button available in your keyboard and in your picture also, because in my laptop this time I have a Windows 11. ये थोड़ा Windows 11 में upgrade हो गया है, तो in which we have this is a start button in it. Simply you click on that start button. But in your computer lab, in your school lab, the start button available in the top left. बिल्कुल not top left, bottom left. Bottom left में इस साइड पे आपको स्टार्ट बटन मिलेगा, and when you click on the start button, the start menu is open, and you can simply search it like Excel, type the Excel. Otherwise you follow the steps that available in your book like start button, all programs, Microsoft Office and Microsoft Excel, and you can open the MS Excel software. And the other thing is the Excel window is look like this. Okay, if you talk about the 2010 Excel program, it's look like this, in which we have many options like title bar.
In the title bar, the file name and the software name is available, in which you can by default you can see the book 1 and Microsoft Excel. In the title bar in the left side we have a quick access toolbar. इसके बारे में पहले भी एमएस वर्ड में बात कर चुके हैं. व्हाट इज क्विक एक्सेस टूल बार, इन विच वी हैव सम ऑप्शंस available like save options, undo and redo options are available. In the title right hand side we have window control buttons and the every tab. Okay, if I open Excel, in which you can see the every tab, like this time is home tab is open. ये अभी home tab open हो रखा है. In every tab we have a different ribbons, like these are the ribbons. ये पूरा जो नीचे खुल के आता है ये पूरा रिबन बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड अ रिबन. एंड इन द रिबन वी हैव अ डिफरेंट ग्रुप्स लाइक क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर. एंड in the separate group we have a separate options, like alignment have a different option, font have a different option, and every tab groups are different, and options is also different. Because this is my Excel is 2019, ये 2019 का Excel है. थोड़ा ये 2010 के कंपैरिजन अपग्रेड है, और इसका जो फीचर है देखने में वो थोड़ा आपको अलग लगेगा कंपैरिजन टू 2019. बट बेसिकली जो फंक्शन सारे 2019 में है वो भी आपको यहाँ पर इजिली अवेलेबल हो जाएंगे. ओके, and the next thing is in which we have a file tab. In the file tab we can see, if I click on the file tab, this is a file tab in which we have options like save, save as, new, open, and the other options also like print, share, close, publish. These options are available. Okay, but the if you click on window in Microsoft Excel 2010, the file tab is look like different, but these options are same. ये जो options हैं साइड में ये सेम मिलेंगे, बट थोड़ा साइड में जो राइट हैंड साइड पे है वो थोड़ा चेंज मिलेगा. बट सेव बेसिकली हम फाइल ऑप्शन पे भी जाकर कर सकते हैं अपनी फाइल को. अदरवाइज कंट्रोल प्लस ऐसी द शॉर्टकट की आप सिंपल उसको भी यूज कर सकते हैं इसके लिए. एंड वी हैव अ हाइलाइटेड हेडिंग इंडिकेट सेल A1. A1 इज अ लाइक इफ आई क्लिक ऑन एनी सेल, जब भी मैं किसी सेल पे क्लिक करता हूँ तो वो हाईलाइट हो जाता है. लाइट वो अदर से आपको हाईलाइट दिखेगा. इसके देखो मैंने सेल पे क्लिक किया तो उसके चारों तरफ एक डार्कन बॉर्डर आ गया जो किसी और सेल के चारों तरफ नहीं है. दैट मीन दिस सेल इज अ एक्टिव सेल. Okay, that cell have a darken border around it, that is called a active cell. And active cell का हमें नेम कहाँ पर मिलता है, कहाँ पर इसका सेल एड्रेस मिलता है, सेल रेफरेंस मिलता है नेम बॉक्स के अंदर. दिस इज अ नेम बॉक्स F13, that means F column and 13 row, like H9, that means H column and 9 row. वर्कशीट विंडो. एंड ये जो पूरा आपका आपको दिख रहा है यहाँ पर रोज एंड कॉलम्स दिख रहे हैं, इसको बोलेंगे वर्कशीट विंडो. ओके, एंड द ग्रिड लाइंस, इसमें आपको लाइंस दिख रही हैं वो सब ग्रिड लाइंस हैं. कॉलम हेडिंग, रो हेडिंग आपको सबको पता है क्या है. रिबन्स आपने देख लिया है. फॉर्मूला बार भी आपको पता है, ये आपका फॉर्मूला बार है जिसके आगे FX लिखा होता है. दिस इज अ फॉर्मूला बार. एंड दिस रो हेडिंग, टैब स्क्रॉलिंग बटन्स. द टैब स्क्रॉलिंग बटन्स वी हैव there. This is a tab scrolling buttons because this time we have no data in it. Okay, so this is a tab scrolling button. ये थोड़ा आपको जो आपका 2019 एक्सेल है और 2010 है उसमें थोड़ा इसका अलग तरीके से बटन बने हुए हैं. वहां पर कुछ अलग तरीके से हैं, यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है. ओके, एंड वी हैव अ स्टेटस बार आल्सो इन 2019 एंड बोथ इन 2010 आल्सो. दिस इज अ स्टेटस बार जहां पर आपको जूम स्लाइडर मिलता है और जो भी आप लिखते हो उसकी डिटेल्स आपको स्टेटस बार में मिल जाती है. दैट इज दिस टाइम इज रेडी. एंड अगर जब भी आप इस पे वर्क करते हो वहां पर आपको रेडी लिखा हुआ मिल जाता है. ये सिंपल है. अभी एडिट लिखा है, जैसे आप सेल पे क्लिक करोगे रेडी वहां पर आ जाएगा. दिस इज स्टेटस बार. यहाँ पर बेसिकली आपको स्टेटस मिलता है अपनी फाइल के रिगार्डिंग. आपका टैब स्प्लिट बॉक्स है. ये आपका एक्सेल में टैब स्प्लिट बॉक्स होता है. इसके थ्रू आप अपने टैब को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो स्लाइडर को यहाँ से, जैसे मैं कर रहा हूँ. एंड दिस इज अ स्क्रॉल बार्स एंड द स्क्रॉल एरोज. दिस इज अ स्क्रॉल बार्स एंड दिस इज अ स्क्रॉल एरोज. इनके थ्रू भी आप स्क्रॉल बार्स को मैनेज कर सकते हो. एंड दिस इज अ जूम स्लाइडर जिसके थ्रू आप पेज को अप एंड जूम आउट एंड जूम इन कर सकते हो. ओके, लाइक बेसिकली हम वर्क 100 पे करते हैं, 100% सेट करके इसका. एंड इन्हीं ऑप्शंस को वन बाय वन यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है जो मैंने आपको अभी बताया है. आप एक बार इन्हें रीड करिएगा. बेसिकली वही है जो मैंने बताया है. थोड़ा रीड करोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा. एक बात आपको याद रखने की है, द माउस पॉइंटर डिस्प्ले एज अ ब्लॉक प्लस साइन. जब भी आप किसी शीट पर माउस पॉइंटर को ले जाते हो, लाइक मेरा माउस पॉइंटर अभी यहाँ है तो आपको एरो शिप का शो हो रहा है. इफ आई मूव माई माउस पॉइंटर इन द वर्कशीट इट कन्वर्टेड इनटू अ ब्लॉक प्लस साइन. तो जब भी आप शीट पे अपने माउस पॉइंटर को ले जाते हो उसका आइकन चेंज हो जाता है, जैसे अभी हो गया है.
जैसे ही मैं शीट से हटाऊंगा आइकन एरो में आ जाएगा और शीट पे लाते ही दोबारा से ब्लॉक प्लस साइन में आ जाता है। ओके, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज चेंजिंग द एक्टिव सेल। ये मैं अभी आपको एक बार बता चुका हूँ, सेल एक्टिव सेल को कैसे चेंज करते हैं। सिंपली इफ आई क्लिक ऑन दैट सेल एंड इफ आई वांट टू चेंज द एक्टिव सेल, सिंपली क्लिक ऑन अनदर सेल लाइक दिस। तो ऐसे आप सिंपली एक्टिव सेल को चेंज कर सकते हो अपने एक्सेल के अंदर। ओके, ये बहुत इजी है एक्टिव सेल चेंज करना। अगर आप किसी अदर सेल पे क्लिक कर दो और सिंपली आपका एक्टिव सेल चेंज हो जाएगा। ओके, बहुत सिंपल स्टेप्स हैं चेंज करने के। ओके बेटा, एंड नेक्स्ट इज and your next topic is in this chapter the some update your knowledge। एक्सेल फाइल इज रेफर्ड एज अ वर्कबुक। एक्सेल फाइल को हम वर्कबुक भी बोलते हैं, इसलिए हमने वर्कशीट एंड वर्कबुक में डिफरेंस भी पूछा था क्या होता है इनमें। सिंपल, तो वर्कशीट सेपरेट एक वर्कशीट होती है, वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स होती है जिसके अंदर मल्टीपल वर्कशीट्स होती हैं वर्कबुक के अंदर। डेटा यू एंटर्ड इन एक्सेल स्टोर्ड इन द फाइल एज कॉल्ड वर्कबुक। एंड जब भी हम एक्सेल फाइल के डेटा को सेव करते हैं तो जो फाइल सेव्ड होती है वो वर्कबुक की फॉर्म में सेव होती है, उसे हम वर्कबुक भी बोलते हैं या एमएस एक्सेल फाइल भी बोल सकते हैं। एंड जो आपका एक्सेल 2010 है उसमें जो फाइल का एक्सटेंशन होता है वो डॉट XLSX होता है। 2019 में भी सेम है। And do you know a formula is a set of symbols and the values that performs and some kind of calculations produce a result। इसमें हम formulas यूज करते हैं। अभी आपके इस वाले चैप्टर में तो नहीं है formulas, बट इसमें हम कुछ formulas यूज करते हैं जो बेसिकली symbols and values का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें जिसके थ्रू हम कैलकुलेशंस एंड अपने रिजल्ट को प्रोड्यूस करते हैं। एंड फार्मूला ऑलवेज स्टार्ट विद द इक्वल टू। हम हमेशा इसे इक्वल टू से ही स्टार्ट करते हैं। अगर इक्वल फार्मूला आपको लिखना है तो ऑलवेज स्टार्ट विद द इक्वल टू साइन। एंड नेक्स्ट इज एंटरिंग डेटा। हाउ टू एंटर डेटा इन एमएस एक्सेल। You simply click on any cell, like if I click on any in that cell and start writing like name and shift to the another cell like this. You can simply move the arrow or otherwise press the enter if writing is completed in a cell. Okay, if I click on this like class like this, you simply, if you want to write in a Excel sheet, simply click on that cell in which you want to write and start writing। बस आपको उस पर सेल क्लिक करना है और लिखना स्टार्ट कर देना है। ऐसे आप अपने सेल के अंदर लिख सकते हो। Okay, and the next topic is saving a workbook. How to save a workbook? The saving steps is also simple. You can simply use the file tab, okay, in which we have option save and save as. Simply click on any option, and after that the save as dialog box is open like this. Otherwise, we have a save as shortcut key also, control plus s, press the save shortcut key, okay, and the save as dialog box is open because this is a 2019, so saving process is different in that. Okay, in 2010 the simple saving process simply click on control process, save is like this. In the left side these are the according आप कहां पर फाइल अपनी सेव कर रहे हो। in the file name, click the file, type the file name, like by default the file name is book1। you can change it like I save my file with the computer, okay, and click on save button। my file is saved in the desktop with the name of computer। like these step you can simply save your file। ऐसे हम अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। इसमें आपने काफी बच्चों ने करके भी देखा हुआ है एंड ऑलरेडी जानते भी हैं। सेलेक्ट सेल। हाउ टू सेलेक्ट अ सेल। बट सिंपली आप किसी सेल पे अगर क्लिक करते हो दैट मीन यू सिलेक्टेड द सेल, किसी भी सेल पर। लाइक इफ आई क्लिक दैट सेल दैट मीन्स आई सिलेक्टेड दिस सेल। इफ आई क्लिक ऑन दिस सेल I selected this cell। if you want to click a multiple cells, simply click on one cell and drag to the another cell like this, okay, and like this you can click any number of cells simply with the help of left click of your mouse, okay, drag it from the right side or the downwards on the upwards on the left side। if left side you have a space like this, in the any position you can select the cells। तो सिंपल बहुत इजी है। सिलेक्ट आप अपनी कैसे भी अपनी पोजीशन में सिलेक्ट कर सकते हैं, बहुत इजी है सिलेक्ट करना भी। अब काफी बच्चों ने किया भी हुआ है एंड यू ऑलरेडी नो इट। एंड हाउ टू सेलेक्ट अ रो। इफ यू वांट टू सेलेक्ट अ होल रो, सिंपली क्लिक ऑन द रो हेडिंग। अगर आप सिंपल आपको पूरी रो को सिलेक्ट करना है स्टार्ट टू एंड, सिंपल रो की हेडिंग पे, किसी भी रो की हेडिंग पे जाके क्लिक कर दो, वन क्लिक ओनली, लेफ्ट क्लिक, वो पूरा पूरा रो सिलेक्ट हो जाता है लाइक द कॉलम।
सेम आपको कॉलम के साथ करना है, कॉलम की किसी भी हेडिंग पे जाकर क्लिक कर दोगे और पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ईज़ी स्टेप्स हैं, काफ़ी बच्चों को पता भी है, आप जानते भी हैं कैसे करते हैं। To select a group of cells, if you want to select a group of cells, simply double click in one cell और drag to the in one side। जिस भी साइड में आप करोगे उस साइड पे आप उसे सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूँ। ओके, ये कुछ इतना हार्ड नहीं है, आप सबने करा भी हुआ है लैब में, जिसने नहीं किया है वो एक बार ट्राई करिएगा एंड ये बहुत ईजी है, हो जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट इज एडिटिंग डेटा इन द वर्कशीट। लाइक इफ यू क्रिएट अ शीट लाइक दिस, ओके, मैं एक शीट बना देता हूँ जैसा एज इट इज आपके बुक में बना हुआ है, इससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा हाउ टू डू। ओके, थोड़ा चेंज करेंगे उसमें अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस, लाइक मॉनिटर, प्रिंटर। सिर्फ इसमें 2 एंट्रीज रखते हैं, नेम रख देते हैं, कुछ नेम्स यूज करते हैं एंड चॉइस इज योर्स, यू कैन टाइप एनी नेम और एनी टाइप ऑफ डेटा। ओके, दिस इज ऑल इन योर हैंड। ओके, एंड आफ्टर दैट राइट सम वैल्यूज। ओके, लाइक दैट यू कैन एडिट इंसर्ट अ डेटा, ऐसे हम डेटा को इंसर्ट करेंगे। लाइक इफ यू वांट टू एडिट इट, अगर आपको एडिट करना है, सिंपली द प्रिंटर, द सोहन प्रिंटर प्राइस इज 300। नाउ इफ यू वांट टू चेंज इट, इफ यू वांट टू एक्सटेंड इट, लाइक आपको बढ़ाना है प्राइस, तो सिंपली डबल क्लिक ऑन दैट सेल, आप सेल के अंदर चले जाओगे। नाउ यू कैन मूव योर कर्सर, योर इंसर्शन पॉइंट इन द एनी पोजीशन एंड इरेज इट। लाइक आपको 300 की जगह 305 करना है, तो यू कैन टाइप लाइक दिस। एंड अदरवाइज अगर आप एक बार क्लिक करोगे तो सिंपली आप वहां पर 300 दोबारा से लिख सकते हो, बट वो पुराने वाला हट जाएगा। एक सेकंड स्टेप है, आप सिंपल इस पे क्लिक करो अपने किसी भी एक सेल पे वन टाइम जिसमें आपको एडिटिंग करनी है, एंड फॉर्मूला बार के अंदर क्लिक करो एंड वहां से भी आप एडिटिंग कर सकते हो लाइक दिस। ओके, एडिटिंग के काफी सारे मोड हैं सब बच्चों के, सबने अलग अलग तरीके से करते हैं। आप आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसे इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, कोई सिंपली इसके लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि नहीं आपको ऐसे ही करना है। ओके, and next is in active cell we you can insert edit the data. Yes, we can insert editor data. And understand one thing, when we select a group of cells like this, like this, like this, okay, any type, okay, that means this is called a range। इसको क्या बोलते हैं, हम रेंज बोलते हैं। लाइक दिस आपको थोड़ा इसका आइडिया मिलेगा, जैसे ही देखो मैंने सेलेक्ट किया, आप नेम बॉक्स के अंदर देखो 1R मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है 7C, दैट मीन्स इट्स टेल यू द रेंज, ये पूरा आपको रेंज बताता है। ओके, तो ऐसे हम रेंज जब हम ग्रुप ऑफ सेल्स को सिलेक्ट करते हैं तो हम दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड अ रेंज, हम पूरे एक रेंज को सिलेक्ट कर रहे हैं। ओके, and to select a word or number inside a cell, select the cell and formula bar, click on the front of text। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने आपको करके दिखाया भी है। अगर आप किसी भी सेल पर क्लिक करते हो तो उसका डेटा आपको फॉर्मूला बार के अंदर शो होता है, जैसे अभी शो हो रहा है। एंड यू कैन चेंज इट फ्रॉम इन द फॉर्मूला बार आल्सो, लाइक मॉनिटर्स, और इरेज इट। तो चॉइस इज योर्स, यू कैन एडिट अ डेटा इन एनी टाइप ऑफ मेथड। नेक्स्ट इज डिलीटिंग अ डेटा। if you want to delete a data in your Excel sheet, after before this add some other values also, like this। okay, now it's easy to adding a value in it, बहुत easy है, आपको सबने किया भी हुआ है और इतना मुश्किल नहीं है, सब आप कर भी लेंगे। and now the step is how to delete। like if you want to delete a one cell data, like simply click on that cell and press the delete button like this। okay, and if you want to delete a whole row or whole column, like if you want to delete a Mohan, so click on the Mohan, select the Mohan row। okay, simply click the header of the Mohan row like 6, and after that click on the right button and we have a delete option there। ओके, सिंपली डिलीट ऑप्शन आपको मिल गया है यहाँ पर। अगर आप डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो वो रो डिलीट हो जाएगा, जो नीचे वाला रो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, अप अबव पे शिफ्ट हो जाएगा। डिलीट में क्या होता है, जब हम किसी रो को डिलीट करते हैं वो वाली रो तो डिलीट हो जाती है और नीचे वाली रो ऊपर शिफ्ट हो जाती है, सिंपली ये होता है। and if you and we have the undo feature also, the control Z is the shortcut key and the undo feature is also available in there। simply press the control Z, तो क्या होगा, ये आपके एक्शंस को रिवर्स कर देता है एंड अगेन द मोहन इज अपीयर। तो लाइक दैट यू कैन डिलीट इट
and you can undo it. Okay, the undoing data I already tell you how to do. Okay, the undo redo, the two things. If you redo this thing, again the Mohan is disappear. तो undo redo के undo normal आपके actions को reverse करता है, and जो redo होता है वो undo को reverse कर देता है. तो basically undo shortcut key is control plus Z and redo shortcut key is control plus Y. ओके, बेसिकली आपको पता है, मैंने ऑलरेडी क्लास में पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है, इतना हार्ड नहीं है ये. स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यूज टू एंटर डेटा इन द टेबुलर फॉर्म, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू. इसमें डेटा हम टेबुलर फॉर्म में एंटर करते हैं, टेबुलर फॉर्म इन रोज एंड कॉलम्स इन अ टेबल फॉर्मेट, एंड मैनिपुलेट इट आल्सो, like change it according to our choice. Next is what is moving and what is copying a data. Basically moving a data is to reorganize data into a worksheet, like to change the place of the data from the original location to the another location. Like अगर आप किसी एक डेटा की लोकेशन एक जगह से दूसरी जगह पर चेंज कर देते हैं, दैट मीन दैट इज कॉल्ड अ मूविंग. Like if I select the Mohan, and like the moving, what we do in the moving, we cut the data and paste on the another location. And how to cut? If first select it, okay, after that when you select it, the cut option is available in there also in the home tab clipboard group. And otherwise we know the shortcut key, simple click the control plus X is the shortcut key of cut, and click where you want to paste the these values. Like I want to paste on the 11th row, simple click on the 11th row and press the paste option, and the paste option available in the home tab also in the clipboard group, and the shortcut key is control plus V, like this. You can see the data Mohan is disappear from the original location and appear on the another location. Okay, this is called a moving. Okay, so undo it, हम इसको undo कर देते हैं. अब हम देखते हैं what is move copying. In the copying, what we do, like I copy the Mohan and Suresh, the both data, and the copy is also available in your clipboard group. Otherwise we know the shortcut control plus C, copy it. And you see when you cut your data or copy your data, the movable line is moving around the सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स. जब भी आप कट कॉपी करते हो तो आप देख रहे हो एक लाइन है जो सेल्स के अराउंड में मूव करने लगती है. दैट मींस ये बताता है कि आपने इतना पोर्शन या तो कट किया हुआ है या कॉपी किया हुआ है. एंड क्लिक वेयर यू वांट टू पेस्ट द डेटा, जहां पर आपको डेटा को लगाना है या पेस्ट करना है. तो आप ये लोकेशन पूरे एक्सेल में कहीं पर भी कर सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं है. किसी अदर शीट के अंदर भी कर सकते हैं. लाइक अगर आपको शीट 1 से शीट 2 में डेटा कॉपी करना है, सिंपल इट कॉपी इट फ्रॉम द शीट 1 एंड पेस्ट इट इन द शीट 2. नो प्रॉब्लम, कर सकते हैं. अगर आप यहाँ पर भी करना है तो यहाँ पर भी कर सकते हैं. ओके, लाइक दैट यू कैन copy and paste. In the copy, you see what happened. The data is appear in the original location and also appear in the another location. तो डेटा दोनों साइड पे रहता है. मूविंग में क्या होता है, डेटा एक साइड से उठकर दूसरी साइड पे चला जाता है और अपनी ओरिजिनल लोकेशन से हट जाता है. दिस इज अ कॉपिंग एंड मूविंग. ओके बच्चे, and some update your knowledge. You can also use click and drag and features also available for the copying and moving. Selecting cell you want to move and position to your mouse pointer over any outside border of the cell, and when you move data will change. Click and drag the range to the new location. Remember to hold control key if you are copying the data. अब बेसिकली ये क्या है, आप माउस का यूज करके भी अपने डेटा को ड्रैग एंड कर सकते हैं. ओके, इसका सिंपली आपको ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर यूज करना होगा, like this. ओके, ऐसे आप अपने डेटा को कॉपी कर सकते हैं अपनी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे. एंड अगर आपको मूव करना है तो उसके लिए बेसिकली आपको कंट्रोल की को प्रेस करना पड़ेगा. ये एरो की माउस का यूज करके है. ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज changing column width. How to change the column width? If you want to change the column width of your Excel, like this is your column, you can see the all column width are same. सबकी column की width है जो same है, जो चौड़ाई है वो same है. If you want to change it, like if you want to increase the column width of C, simple move your cursor from the C heading, your column heading in the middle line like this. You can see your cursor is
इन अ डिफरेंट स्टाइल। जैसे आप ले जाओगे वो थोड़ा एक अलग स्टाइल का हो जाएगा। ओके, यू सिंपली होल्ड योर कर्सर ऑन दैट लाइन एंड इंक्रीज और डिक्रीज योर कॉलम width according to your choice. Now I'm increasing it. Okay, and now I'm decreasing it. Okay, like that you can decrease or increase the column width. Like that you can do in the column also, in the row also, sorry. Okay, when you move the cursor in the column, in the row heading line, you can see the cursor is changed, cursor sign is changed, and simply hold with the left key and you can increase or decrease the column heading. Now I'm increasing the, sorry, row height. Now I'm increasing the row height and now I'm decreasing the row height. ऐसे आप अपनी रो हाइट को और कॉलम हाइट को डिक्रीज कर सकते हैं। एक हमारे पास अदर ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। सिंपल आप फॉर्मेट में जाइए एंड यहाँ पर अपने रो हाइट पर क्लिक करिए एंड अपने अकॉर्डिंग, चॉइस के अकॉर्डिंग अपनी रो हाइट को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। लाइक इफ आई क्लिक द 20, ऑल सेल्स हाइट इज गोइंग टू बी 20। ये हाइट बेसिकली सिलेक्टेड है, ये उस पर वर्क करता है। अगर मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, फर्स्ट आई अंडू इट द थिंग, लाइक फर्स्ट सेलेक्ट द टेबल फर्स्ट एंड देन क्लिक ऑन द रो हाइट। ओके, एंड टाइप द रो हाइट जो मुझे रो हाइट करना है। लाइक इफ आई क्लिक द 50, रो हाइट इन द चेंज इट 50, जो भी पूरा रो है वो 50 में 50 साइज का हो जाएगा। एंड लाइक दैट यू कैन डू इन द कॉलम हेडिंग ऑल्सो। सेम आप कॉलम हेडिंग में भी कर सकते हैं, लाइक 50 एंड ओके। जो भी आपने कॉलम सेलेक्ट करे हुए हैं वो आपका सेम उसी हेडिंग में उसी विड्थ के हो जाएंगे। तो ऐसे आप अपनी कॉलम के रो की विड्थ को चेंज कर सकते हैं। एंड अगर आप आपने एक चीज नोटिस किया है, ये ऑटो फिट भी हो जाता है। लाइक दैट इफ आई क्लिक द लॉन्ग हेडिंग, okay, like sales of computer parts, like this, the heading is long. Okay, now you can see the first column data is appear in the second column also. जब A में sales of computer लिखा है वो B तक जा रहा है, that means अभी A वाला कॉलम इतना बड़ा नहीं हुआ है। तो अगर आप A कॉलम की हेडिंग पे सिंपल डबल क्लिक करोगे तो वो अपने अकॉर्डिंग ऑटो फिट हो जाएगा, जो सबसे मैक्सिमम डेटा है किसी भी सेल में उसके अकॉर्डिंग। लाइक सबसे बड़ा जो डेटा है कॉलम ए में वो सेल्स ऑफ कंप्यूटर पार्ट्स ही है एक्सेल में, तो उसके अकॉर्डिंग ऑटो फिट हो जाता है। तो ऐसे भी हम अपने कॉलम हेडिंग को या रो हेडिंग को चेंज कर सकते हैं। ओके, now you know how to change the column heading and row heading. And we have a inserting row options also. How to insert a row? Simple, like if you want to insert a row between Mohan and Suresh, so simply the simple steps are available. Like click on the Suresh row like this, and we have an insert option there. And after when we select a row, so in which we have a insert sheet row option is available. एंड अगर आप ऐसे रो को इंसर्ट कर रहे हो तो एंड रो ऑलवेज इंसर्ट इन द अबव ऑफ द सेलेक्टेड लाइन। जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है रो उसके हमेशा अबव में रो इंसर्ट होगा, जो भी आपने रो सेलेक्ट किया हुआ है। लाइक अगर आपको सुरेश के एंड सोहन के नीचे सेलेक्ट करना है, रो लाना है कोई एक्स्ट्रा, तो आपको मोहन को सिलेक्ट करना होगा, तभी उसके अबव पे रो सिलेक्ट होगा, लाइक दिस। एंड सेम एज अगर आपको कॉलम सेलेक्ट करना है तो फर्स्ट सेलेक्ट द कॉलम। लाइक आई वांट टू इंसर्ट अ कॉलम बिटवीन द मॉनिटर एंड प्रिंटर, सिंपली क्लिक द select the row, okay, and simple click the insert sheet column option. And when you click on that you can see the always inserted column in appear in the left side। जो भी आपने रो सेलेक्ट किया हुआ है उसके लेफ्ट साइड में inserted row appear होता है। Okay, and like that you can simply insert a cell also। The insert cell option is also available। Okay, click where you want to insert a cell, क्लिक ऑन इंसर्ट सेल ऑप्शन। एंड लाइक ये आपसे पूछेगा आपको इंसर्ट कहाँ पर सेल करना है, इंसर्ट करना है शिफ्ट सेल राइट। दैट मीन्स ये जो डेटा है 90 100 900 लिखा है ये राइट में शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पर एक इंसर्ट सेल इंसर्ट हो जाएगा। अदरवाइज शिफ्ट सेल डाउन, जो ये सेल है नीचे पूरा दोनों जो डेटा है नीचे शिफ्ट हो जाएगा। मैं दोनों करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट शिफ्ट सेल राइट, तो देखो एक सेल इंसर्ट हो गया, जो डेटा था यहाँ पर वो राइट में शिफ्ट हो गया। एंड अगर मैं इसमें इस ऑप्शन चूज करता हूँ शिफ्ट सेल डाउन,
दोनों डेटा था जो नीचे का वो नीचे शिफ्ट हो गया। तो डेटा बेसिकली होता क्या है, डेटा शिफ्ट हो जाता है और एक रो इधर ब्लैंक हो जाती है। बेसिकली होता ये है। एंड रो इंसर्टिंग में, कॉलम इंसर्टिंग में भी सेम यही होता है। जो डेटा होता है वो शिफ्ट हो जाता है अदर साइड, एंड वहां पर एक ब्लैंक रो या कॉलम आ जाता है। ओके, तो ऐसे हम एक कॉलम को और रो को इंसर्ट कर सकते हैं। द सिंपल स्टेप्स। ओके, तो इसके लिए फर्स्ट हमें किसी कॉलम या रो को सिलेक्ट करना होता है। अगर हमें रो, स्पेशली कोई रो डालना है तो रो को सिलेक्ट करेंगे, अगर कोई कॉलम इंसर्ट करना है तो कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। एंड स्पेसिफिकली अगर आपको किसी कॉलम को डिलीट करना है या किसी रो को डिलीट करना है, तो फर्स्ट हम पहले एक इंसर्ट करके देखते हैं। कॉलम, एक कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं और एक रो इंसर्ट कर लेते हैं। एंड नाउ I delete first the column. How to do? First, click on that column that you want to delete. Like I want to delete this blank column. First, select it. That click on delete option. The delete option is available in also in the home tab. Okay, simply click on delete sheet column option, and जो column आपने select किया है वो delete हो जाएगा. Same steps you can follow in the row deletion. अगर आपको कोई रो डिलीट करना है, सिंपली फर्स्ट सेलेक्ट द रो एंड आफ्टर दैट क्लिक ऑन द डिलीट शीट रो ऑप्शन। ऐसे आप अपनी कॉलम्स एंड रो को डिलीट कर सकते हो। ये बहुत सिंपल स्टेप है। इंसर्टिंग अ सेल, ये भी मैंने आपको बता दिया है कैसे सेल को इंसर्ट करते हैं एंड कैसे किसी सेल को डिलीट करते हैं। ये भी एक आप देख लीजिए। फर्स्ट सेल, द इंसर्ट द सेल, एक सेल को इंसर्ट करते हैं फिर उसे डिलीट करके देखते हैं। ओके, लाइक जिसे डिलीट करना है फर्स्ट सेलेक्ट द सेल। ओके, आफ्टर दैट दे आस्क डिलीट द सेल, यस। कौन सा सेल डिलीट करना है? शिफ्ट सेल लेफ्ट। ओके, शिफ्ट सेल अप, लाइक दिस। ऐसे आप अपना सेल डिलीट कर सकते हैं। द स्टेप्स इज सो सिंपल। एंड next is switching between the worksheet. Like now I'm working in the sheet 1. If you want to switch from in the sheet 2 or sheet 3, simple click on that sheet. लाइक जिस भी शीट में आपको स्विच करना है आप उस शीट पर क्लिक कर सकते हैं और आप अदर शीट में मूव कर जाएंगे। बहुत सिंपल स्टेप है शीट मूविंग के। ओके, सिंपल शीट, सिंपल आपके सामने अवेलेबल है। अगर आपको कोई शीट रीनेम करनी है तो राइट क्लिक ऑन द शीट, लाइक शीट 1 पे राइट क्लिक करिए, इन विच यू कैन सी द रीनेम ऑप्शन इज अपीयर। सिंपल क्लिक ऑन द रीनेम एंड रीनेम योर शीट लाइक दिस। अभी मैंने शीट 1 से इसका नेम चेंज कर दिया है। ओके, ऐसे आप अपनी शीट का नेम चेंज कर सकते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है। एंड किसी भी शीट का आप इस टाइप से राइट क्लिक करके, अदरवाइज आप अगर डबल क्लिक करेंगे तो रीनेम का ऑप्शन ओपन हो जाता है। डबल क्लिक करने से भी, राइट क्लिक करने से आ जाएगा, एक लिस्ट ओपन होगा, एंड डबल क्लिक करने से डायरेक्ट आप एडिटिंग पे चले जाएंगे, अंदर रीनेमिंग में चले जाएंगे। ओके, लाइक दैट यू कैन रीनेम द शीट। एंड नेक्स्ट इज the worksheet tab. Like by default you can see the worksheet tab is available like in a simple whitish color. It's not a pure white, it's some grayish white. Okay, like अगर आपको एक कलर करना है, इसमें कोई कलर करना है, तो आप जिस भी शीट पे आपको कलर करना है फर्स्ट सेलेक्ट ऑन दैट शीट। ओके, एंड आफ्टर दैट राइट क्लिक ऑन द राइट क्लिक ऑन द शीट। ओके, राइट क्लिक करने पे इस तरह से टेबल ओपन हो जाता है एंड देन क्लिक ऑन टैब कलर। Okay, and we have many tab colors available here, and choose any color your choice, any color. Like if I select the red color and the sheet, my sheet color is red, तो मैंने क्या किया, शीट कलर को, जो अपना शीट टैब कलर है उसको कलर कर दिया, रेड हो गया। ओके, लाइक ऐसे मैं ऑप्शनल को भी कर सकता हूँ, इस वाली शीट का भी कलर चेंज कर सकता हूँ लाइक दैट, एंड ऐसे मैं इसका भी कलर चेंज कर सकता हूँ। ओके, this is the simple steps for changing the color of your sheet tab. Okay, Bache. And next is adding a worksheets. How to add a worksheets? This steps is also very simple. Maximum students already done this. Like simple click on this plus sign, and your another sheet is inserted. Okay. बेसिकली ये लास्ट में आता है, बट अभी यहाँ पर हमने शीट को थोड़ा नेम चेंज कर दिया है तो इसलिए ये यहाँ पर आ गया है। ओके, बेसिकली जो शीट सिलेक्टेड होता है वो उसके बाद आ जाता है। अगर मैं यहाँ पर शीट सिलेक्ट करूंगा तो उसके बाद आ जाएगा। अगर मैं लास्ट वाली शीट सिलेक्टेड है तो इसके बाद आ जाएगा। Okay, like that you can insert a sheet in your
workbook. Okay. And next step is, sorry, next topic is, and first read the update your knowledge. You can press shortcut key shift plus F11, the insert a worksheet. ये इसका शॉर्टकट की है अगर आपको इंसर्ट शीट को इंसर्ट करना है विद द शॉर्टकट की इज शिफ्ट एंड F11. Okay, the sheet is inserted. You can see in the picture, the sheet is inserted. Okay, ऐसे भी आप अपनी शीट को इंसर्ट कर सकते हैं. The steps is also very simple. And you can also insert a sheet with the insert button. The insert button is available in the okay, in the in the tab. Okay. And where we have the insert option is also available, insert sheet. And otherwise you can insert from the home tab also. In the home tab we have an insert tab, and we have an insert sheet option, and like that you can also insert a sheet in your excel file or in your excel workbook. Okay, sorry, ये home tab के अंदर था. I think I'm confusing, थोड़ा कंफ्यूज हो गया था इसलिए थोड़ा इंसर्ट टैब में चला गया. दैट ऑप्शन इज अवेलेबल इन द होम टैब, द इंसर्ट ऑप्शन. एंड in the with the help of that insert sheet option you can also insert a sheet. And next is deleting a worksheets. Like अगर आपको ये एक्स्ट्रा वर्कशीट्स को डिलीट करना है, सिंपल राइट क्लिक ऑन इट एंड प्रेस द डिलीट बटन like this. So like this you can delete the sheets also. Simply click on the right click on the sheet, and the list is appear in which we have a delete option, and like that you can delete the inserted sheet. Okay. And the next is moving and copying. Moving and copying is also very easy. If you want to move the delete sheet, detail sheet, मैंने इसका नाम डिटेल रखा है. अगर आपको ये मूव करना है तो आप सिंपल स्टेप्स आप इसे भी कर सकते हो, ड्रैग कर सकते हो. होल्ड करो और राइट साइड में ड्रैग कर दो जैसे मैंने किया है. ओके. बस ड्रैग करना है अपनी फाइल को होल्ड करके लेफ्ट क्लिक के थ्रू. अदरवाइज राइट क्लिक करो, द मूव एंड कॉपिंग ऑप्शंस आर अवेलेबल. सिंपल क्लिक ऑन दैट ऑप्शन. If you want to create a copy, so click on the create a copy option. Otherwise if you want to move, so no need to click on create a copy option. तो मूव में हम नहीं करेंगे, फर्स्ट हम देखेंगे मूव कैसे होता है. लाइक ये आपसे पूछेगा बिफोर शीट, which sheet before you want to that sheet that you selected for the moving. लाइक मैंने डिटेल शीट को सिलेक्ट किया है तो ये पूछेगा ऑप्शनल, ऑप्शनल से पहले करना है. ऑप्शनल से पहले तो ये ऑलरेडी है, बिफोर है. शीट 3 से बिफोर करना है तो शीट सी से पहले आ जाएगा. अगर मूव एंड में करना है तो मूव टू एंड पे क्लिक करिए, आपका डिटेल का शीट एंड में चला जाएगा. लाइक दिस. ये कहाँ पे मूव हो गया, स्टार्ट से एंड में मूव हो गया. ओके. आपको दोबारा से मूव करना है, अगेन क्लिक ऑन मूव ऑप्शन. अब ये पूछ रहा है आपसे, आपको ऑप्शनल से किससे पहले लाना है, इसे बिफोर से, ऑप्शनल से बिफोर लाना है, शीट से बिफोर लाना है, शीट 3 से. हमें ऑप्शनल के बिफोर लाना है. सिंपल क्लिक ऑन ओके. अब ये जहां पर था वापस आ गया है. ओके. अगर आपको इसका कॉपी बनाना है तो अगेन क्लिक ऑन द दैट ऑप्शन मूव और कॉपी, एंड आफ्टर दैट क्लिक ऑन क्रिएट अ कॉपी ऑप्शन. एंड यहाँ पर भी लोकेशन पूछेगा आपको क्रिएट कॉपी बनाकर रखना कहाँ पर है. अगर आपको एंड में ले जाना है तो मूव टू एंड पर क्लिक करेंगे और इस फाइल का एक कॉपी बन जाएगा, जिसका नेम चेंज होगा कंपैरिजन टू द अदर, बिकॉज एक शीट के हम दो नाम नहीं रख सकते. ओके. अगर हम रखने की कोशिश भी करेंगे तो ये नहीं रखने देगा. द नेम इज ऑलरेडी टेकन. ओके. ट्राई द डिफरेंट वन. तो इसलिए जो रीनेम फाइल आती है उसका नेम चेंज होता है. ओके. एंड द next topic is some read the update your knowledge. Always check the sheet's content before deleting to avoid removing any important data. It's a general information that if you are deleting some sheet, so first see the data in that available in your sheet, that this is not important data, so then delete the data. Okay. After deleting your worksheet you cannot ओवरकम द डेटा. अब वापस नहीं आएगा, वो एक बार परमानेंटली डिलीट हो जाता है. तो इसलिए शीट डिलीट करने से पहले देखो उसमें से आप क्या डिलीट कर रहे हो. यू कैन ऑल्सो मूव यूज योर माउस टू मूव वर्कशीट्स. मैंने आपको करके भी दिखाया कैसे आप माउस कर्सर के थ्रू अपनी शीट्स को मूव कर सकते हो. आपको सिंपल होल्ड करना है एंड जहां पर भी आपको मूव करना है शीट को, वहां पर आप ले जाके इसे ड्रैग ड्रॉप कर दो. दिस इज अ ड्रैग ड्रॉप फीचर. ओके. एंड दिस इज योर चैप्टर इज ओवर नाउ. सो now your work is see the video from start to end.
carefully, and then practice the work in your computer, in your laptop, or in your lab. Okay, best of luck.